नमस्कार फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, ए ग्रेड 1 ankle sprain is characterized by A. Complete ligament rupture. B. Mild stretching with no instability. C. Partial tear with moderate stability. D. Bone fracture. So answer here is B. Mild stretching with no इनस्टेबिलिटी। ठीक है, देखो ग्रेड 1 एंकल स्प्रेन के आप यहाँ पर हम ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि माइल्ड स्ट्रेचिंग विद नो इनस्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए ग्रेड 3 ankle sprain indicates A. Mild swelling only. B. Complete tear with gross instability. C. Partial tear with mild pain. D. Muscle strain. So answer here is B. Complete tear with gross instability. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ एन acute ankle sprain is A. Heat therapy. B. Rest ice compression elevation. C. Deep tissue massage. D. Weight bearing exercise. So answer here is B. Rest ice compression and elevation. Next है question number 4, chronic ankle instability is most likely to occur if A. Rehabilitation is incomplete. B. The sprain occurs medially. C. The patient is immobilized for too long. D. None of the above. So answer here is A. Rehabilitation is incomplete. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि chronic ankle instability is most likely to occur if rehabilitation is incomplete. Next है क्वेश्चन नंबर 5, the anterior draw test of the ankle is used to assess injury of the A. deltoid ligament. B. ATFL. C. CFL. D. PTFL. So answer here is B. ATFL, anterior talofibular ligament. ठीक है, और दिस लिगामेंट lie in lateral side of the ankle. So most common ligament sprain in lateral side. So which ligament? Anterior talofibular ligament. So anterior draw test of the ankle is used to assess injury of the anterior talofibular ligament. Next question number 6, the Taylor tilt test. Okay, Taylor tilt test primarily assess A. ATFL integrity. B. collateral fibular ligament integrity. C. deltoid ligament instability. And D. Achilles tendon strength. So answer here is B. CFL integrity. Next question number 7, which of the following is a common symptoms of ankle sprain? Common symptoms of ankle sprain: A. pain and swelling over lateral malleolus. B. pain over the medial arch only. C. pain in the Achilles tendon. D. numbness in the toes. So answer here is A. pain and swelling over lateral malleolus. Next question number 8, recurrent ankle sprain. Recurrent means recurrent
रिपीट होना, बार बार एंकल स्प्रेन होना। कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो आप उसको रिकरेंट एंकल स्प्रेन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? ए इग्नोरिंग माइनर पेन, बी प्रोप्रियोसेप्टिव एंड बैलेंस ट्रेनिंग, डी सी अवॉइडिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, डी टाइट टेपिंग ऑलवेज। सो आंसर हेयर इज बी proprioceptive and balance training. Next question number 9. In a severe ankle sprain, the injured ligament may avulge a bone fragment from, ठीक है, जब सिवियर एंकल स्प्रेन होता है तो इंजर्ड जो लिगामेंट होता है वो मे अवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कि लाइक लिगामेंट क्या करता है, पुल कर देता है बोन फ्रैगमेंट फ्रॉम ए टेलस, बी फिबुला, सी टिबिया, डी कैलकेनियन। सो आंसर हेयर इज फिबुला, ठीक है। फिबुला बोन की फ्रैगमेंट हो जाती है किसे? अवल्जन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन विच एक्सरसाइज इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट? ए जंपिंग एंड रनिंग, बी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सी रेजिस्टेंट बैंड इन्वर्जन, डी बैलेंस बोर्ड ड्रिल। सो ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन, ठीक है, तो विच एक्सरसाइज आप क्या करोगे? फर्स्ट अप्लाई करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्या करोगे? पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इफ साइक्लिस्ट ऑफ बाईसाइकिल सीट इज टू लो, अगर एक साइक्लिस्ट है उसकी साइकिल की जो सीट है वो ज़्यादा लो होती है, देन विच टाइप ऑफ पेन अकर्स? ठीक है, ए ऑसगुड शेल्टर पेन, बी पटेलोफिमोरल पेन, सी टिबियल प्लेटू पेन, एंड डी ऑल ऑफ द above. So answer here is B, patellofemoral pain. Next question number 12. What is the recommended duration for an ice pack application on an acute injury? acute injury में ice pack application कितने टाइम के लिए आप रिकमेंड करेंगे? ए 5 मिनट, बी 10 to 20 मिनट, सी 30 to 45 मिनट्स, डी 1 hour. सो आंसर हेयर इज 10 to 20 मिनट्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. आइस थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंजरी? ओके, so ice therapy is most effective during which phase of injury? A chronic phase, B subacute phase, C acute phase, D remolding phase. So answer here is acute phase. Next question number 14. Which of the following is not an effect of cryotherapy? Okay, which of the following is not an effect of cryotherapy? A decrease pain, B decrease muscle spasm, C increase local metabolism, D decrease blood flow. So answer here is increase local metabolism. क्या आंसर है आपका यहाँ पर? सी. सो कौन सा क्रायोथेरेपी से इफेक्ट नहीं आता है? देखो, क्रायोथेरेपी से डिक्रीज पेन कम होता है, मसल स्पाजम कम होती है, जहाँ इंजरी ऑफ साइट होती है वहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है. और क्या इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर? आंसर है आपका सी, इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म. लोकल मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. What is the normal duration for applying an ice pack? Okay, normal duration बतानी है आपको applying an ice pack. A 1 to 2 minutes, B 5 to 10 minutes, C 10 to 20 minutes, D 30 to 60 minutes. So answer here is C, 10 to 20 minutes. And this question important for state level exam. State level of physiotherapy exam.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर आइस थेरेपी। सो आप किस में आइस थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे? ए एक्यूट स्प्रेन में आप आइस यूज़ करेंगे, बी मसल स्ट्रेन में भी आइस यूज़ करेंगे, डी टेंडनाइटिस में भी आप आइस यूज़ करेंगे, बट रेनॉइड्स जो डिजीज़ होती हैं आप उसमें जो आइस थेरेपी है ये क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही रेनॉइड्स जो डिजीज़ होती है, ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज़। और जो फ्रोस्ट बाइट होती है, कंडीशन होती है हमारी, वही कंडीशन किस में चेंज हो जाती है? रेनॉइड्स डिजीज़ में चेंज हो जाती है। जो आपके फिंगर्स हैं वहाँ तक क्या है, अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का पास ना होना। और अगर आप वहाँ पे आइस यूज़ करेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी पहले ही कम पास हो रहा है फिंगर्स में, फुट में या फिर पाम में, तो आइस लगाने से और क्या होगा कि और वैजो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आइस थेरेपी रेनॉइड डिजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द सीक्वेंस ऑफ सेंसेशन फेल्ट ड्यूरिंग आइस एप्लीकेशन। ए पेन, बर्निंग, नमनेस, कोल्ड। बी कोल्ड, बर्निंग, aching, numbness. C numbness, cold, pain, vomit. D burning, pain, numbness, cold. सो सीक्वेंस ऑफ सेंसेशन बतानी है फेल्ट ड्यूरिंग आइस एप्लीकेशन। जब आप आइस यूज़ करते हैं तो कैसे सीक्वेंस में सेंसेशन का सीक्वेंस बनता है। यहाँ पे जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी कोल्ड। पहले तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, फिर क्या आएगी? बर्निंग सेंसेशन आएगी, फिर एकिंग एंड देन नमनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोवाइड द मोस्ट इंटेंस कूलिंग। ए आइस मसाज, बी कोल्ड पैक, सी कोल्ड इमर्जन बाथ, डी वेपो कूलेंट स्प्रे। सो आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड द मोस्ट इंटेंस कूलिंग। तो इंटेंस कूलिंग के लिए आप कौन सा मेथड प्रोवाइड करेंगे? सो इनमें से आपका जो आंसर है वो है आपका कोल्ड इमर्जन बाथ। सो कोल्ड जो इमर्जन बाथ है यूज्ड फॉर इंटेंस कूलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लोकलाइज स्पास्टिसिटी कंट्रोल इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है फॉर लोकलाइज स्पास्टिसिटी के लिए? ए आइस मसाज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एम्स एग्जाम एंड एनी एग्जाम। ए आइस मसाज, बी आइस पैक, सी कोल्ड इमर्जन, डी वेपोकुलेंट स्प्रे। सो आइस मसाज is most suitable for localized spasticity control in spinal cord injury. Next question number 20. The ideal interval between repeated cryotherapy session during acute sports injury management is A every 2 hours, B every 6 hours, C once daily, D every 12 hours. So ideal interval between repeated cryotherapy session during acute sports injury management every 2 hours are used of cryotherapy session during acute sports injury management. So आज के जो हमारे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, harmful factors should be avoided. A 72 hours following injury, B 24 hours following injury, C 48 hours following injury, D 82 hours following injury. So answer here is 72 hours following injury. Harm HARM, heat, alcohol,
रनिंग एंड मसाज, ठीक है। सो शुड बी अवॉइड इन 72 आवर्स फॉलोइंग इंजरी। 72 घंटे तक हम इस फैक्टर को यूज़ नहीं करेंगे। आफ्टर सब एक्यूट फेज एंड क्रोनिक फेज में हम इन हार्म फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमारे जो ये 21 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स इंजरी के क्वेश्चन, ये हमारे कंप्लीट हुए। इससे आगे जो वीडियोस आएंगी वो अब आपके बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।